Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Convent Group of Schools. Students, from today we are going to take up the next chapter, that is Journey to the End of the Earth, and the chapter is written by Tisani Doshi. So before we talk about the chapter, let us talk about author something. Tisani Doshi. You know, Tisani Doshi is a writer and dancer of Wales Gujarati origin. She was born in Madras, India in 1975. She studied business administration and communications at Queen's College, Charlotte, North Carolina, and gained a master's degree in the writing seminars of Johns Hopkins University, Baltimore. She moved to London in 1999, becoming assistant to the advertising department of Harper's and Queen magazine. In 2001, she returned to India, where she became a dancer with the choreographer Chandralekha. She also works as a freelance journalist, contributing to various newspapers such as The Guardian, the International Herald Tribune, the New Indian Express, and the National. Her first book of poetry, Countries of the Body, that was published in 2006, won the Forward Poetry Prize, that is the best first collection, in 2006. Her first novel, The Pleasure Seekers, was published in 2010 and was shortlisted for the Hindu Best Fiction Award and longlisted for the Orange Prize for Fiction and the International Impact Dublin Literacy Award. Everything Begins Elsewhere, that was published in 2012, is a collection of poems and it is her latest book. Tisani divides her time between a village by the sea in Tamil Nadu and elsewhere. As I told you, Tisani Doshi is a multifaceted woman who takes interest in different genres of literary fields. She is a well-known poet, novelist, and biographer. She generously contributes articles to magazines and newspapers. She has a love for adventure, and her participation in program Students on Ice is an active witness of the adventurous spirit in her. She has a keen and observant eye and has a knack of giving minute details. The entire article, Journey to the End of the Earth, is replete with such instances. Her knowledge of the geophysical world is commendable, and her command over written English merits appreciation. So, students, this chapter that we are going to study today is a memoir that deals with her journey to an experience at Antarctica, where she had gone with a group of students on board Academic Sokolsky as part of Students on Ice, an educational adventures tourism program headed by Canadian Geoff Green. So हम आपको बता दें, ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये एक स्मृति है उनकी जर्नी का, जो कि उन्होंने टेकअप किया अंटार्कटिका के लिए। और ये एकेडमिक सोकाल्स्की नामक जो रशिया रिसर्च वेसल था, उसके साथ ये गई थी स्टूडेंट्स ऑन आइस के एक पार्ट के रूप में, जो कि एक एजुकेशनल एडवेंचरस टूरिज्म प्रोग्राम का पार्ट था, जिसको कि हेड किया था
कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन ने। ये जो आर्टिकल है इसका जो चीफ थीम है, द चीफ थीम ऑफ द आर्टिकल इज द वंडर एंड अमेजमेंट दैट वन एक्सपीरियंसेस एट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे जो व्यक्ति महसूस करता है, जो पाता है वंडर, जो पाता है अमेजमेंट, उसका बहुत ही सुंदर डिपिक्शन किया गया है चैप्टर में, which holds to the key the earth's past, present and future। हम आपको बता दें, ये अंटार्कटिका इस पूरी धरती के पास्ट, धरती के प्रेजेंट और धरती के फ्यूचर का की माना जाता है। There is an equally significant sub theme too। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई कि अंटार्कटिका के जो पे जाने के बाद जो वंडर उन्होंने महसूस किया या जो अमेजमेंट उन्होंने महसूस किया उसको डिपिक्ट करता है। उसके साथ ही साथ एक बात और, that has been very well explained in the chapter is that it is the need of saving the planet Earth from total annihilation and the role the school students who are the future decision makers and inheritors of the earth can play in this gigantic task। तो जो एक और महत्वपूर्ण बात जो ऑथर यहाँ पे करना चाहती है वो ये कि हम सबको अपने प्लैनेट अर्थ की रक्षा करनी है, सेफगार्ड करना है, और उसमें स्टूडेंट्स की अहम भूमिका ऑब्जर्व कर सकती है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, यही भविष्य हैं हमारे देश के, यही भविष्य हैं हमारी अर्थ के। यही जो स्टूडेंट्स हैं यही डिसीजन मेकर बनेंगे, यही इनहेरिट करेंगे इस अर्थ को, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 18। So students, the lesson revolves around the world's most preserved place, that is Antarctica, as I told you। जो लेसन है वो इस दुनिया के सबसे प्रिजर्व प्लेस जो कि अंटार्कटिका है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। हम सभी जानते हैं कि हम में से बहुत लोग अंटार्कटिका पे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अंटार्कटिका की टूर पे जा चुके हैं। एंड तिसानी दोषी जो कि राइटर हैं इस चैप्टर, इस आर्टिकल की, वो अंटार्कटिका के टूर पे जा चुकी है। A South Indian who went on an expedition with a group of teenagers affiliated with the Students on Ice program, who takes young minds to different ends of the world. Thus, it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the past, present and the future in the realist way। तो आपको बड़े अच्छे से इस चैप्टर में आप पाएंगे कि आप जान सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं कि अंटार्कटिका पे जाना सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको अपनी पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में या उसके रियलिस्ट फॉर्म में जानने की इच्छा है। तो सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Akademik Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica। So, जो स्टोरी की आर्टिकल की शुरुआत करती है ये ऑथर। स्टोरी की बिगिनिंग में ही ऑथर जो है बातचीत हमको आती है अपनी उस जर्नी के बारे में जो कि उसने टेकअप किया था इस दुनिया के, इस अर्थ के सबसे ठंडे, सबसे ड्राई और सबसे विंड
विंडी कॉन्टिनेंट के बारे में जिसका नाम है अंटार्कटिका। शी वेंट टू अंटार्कटिका on a Russian research vessel known as Akademik Sokolsky। वो अंटार्कटिका रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की था उस पे गई थी। ये जो ऑथर हैं सी इज अ साउथ इंडियन हु बिगैन हिज जर्नी फ्रॉम मद्रास। सो that is why she is telling that in the beginning of this year she started her journey with a Russian research vessel whose name was Akademik Sokolsky that was heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica. My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras। ऑथर बताती हैं कि उनकी जर्नी मद्रास से शुरू हुई जो कि 13.09 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स। सो she began her journey from Madras, and to reach Antarctica she crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at last as many ecospheres। मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने में ऑथर ने 9 टाइम जोन्स को पार किया, 6 चेक पॉइंट्स को पार किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 वाटर बॉडीज को पार किया और शायद उतने ही जितने वाटर बॉडी को पार किया उतने ही इकोस्फीयर्स को भी क्रॉस किया होगा, तब जाकर के शी रीच्ड अंटार्कटिका। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 hours in combination of car, an aeroplane and a ship। So you can understand, to reach Antarctica over here in this paragraph author is describing when she set her foot on the Antarctica she had taken up his journey by various means of transportation। अंटार्कटिका पे पहुंचने के लिए उसने कई एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया था। जैसे पहली बात तो कितना टाइम लगा था उसको, लगभग 100 घंटे ज़्यादा, ओवर 100 आवर्स। और ये जो 100 घंटे की जर्नी है उसने कार में पूरी किया, फिर कार से वो पहुंची एयरपोर्ट, वहां से एरोप्लेन लिया और एरोप्लेन से वो जो है शिप के बाद जो है शिप लिया और उस शिप के साथ ये पहुंची अंटार्कटिका। सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। So जो मेरा फर्स्ट इमोशन था जब मैंने अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप्स को देखा और वहां का जो अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन है उसको देखा तो इसको बहुत रिलीफ मिला। शी वॉज हाईली रिलीव्ड ऑन सीइंग द एक्सपेंशन ऑफ वाइट लैंडस्केप्स ओवर देयर एंड आल्सो द अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन, क्योंकि वहां का जो ब्लू हॉरिजॉन है ना वो अभी तक इंटरप्ट नहीं किया गया, वो जैसा था आज भी वैसा ही है, क्योंकि जितने भी चेंजेस आए हैं कहीं के भी इकोसिस्टम में, उस इकोसिस्टम में चेंजेस आने का मेन जो कारण रहा है वो रहा है इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग।
और अच्छी बात यह है कि अंटार्कटिका पे तो ह्यूमन बीइंग पहुंच ही नहीं पाया अभी तक। बहुत कम जो है लकी लोग हैं जो कि अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन पे जा पाए हैं। तो वो आज भी वैसा ही है। वहाँ का जो वाइट लैंडस्केप था, वाइट लैंडस्केप क्यों? अरे भाई क्योंकि अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पे क्या मिलता है? अंटार्कटिका पे आइस है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आइस है। वहाँ पे कोई जीव नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है। वहाँ पर अगर कुछ है देन इट इज ओनली आइस। तो आइस का जो वाइट लैंडस्केप है वो चारों तरफ फैला हुआ, उस दृश्य को देख करके ऑथर को काफी रिलीफ मिला। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। हाँ, रिलीफ के साथ साथ वंडर भी इसको, आई मीन द पोएट was author was highly wondered, profound wonder किस पे वंडर, किस बात पे wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। एक क्वेश्चन आई होता है, आखिर किस बात पे वंडर? आश्चर्य तो मिला, ठीक है, लेकिन आश्चर्य किस बात का था? आश्चर्य बात था इसके इमेंसिटी पे। कितनी दूर दूर तक ये फैला हुआ है, कितना बृहद लैंडमास है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। इसकी इमेंसिटी पे, इट्स आइसोलेशन, इसके आइसोलेशन पे, किस प्रकार से ये आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। दुनिया अलग तरफ है। दुनिया का एक हिस्सा वो है जहां पर भीड़ भाड़ है, जहां पर लोग थोड़े थोड़े जमीन के लिए तरस रहे हैं, और दुनिया का एक हिस्सा ये है एकदम अलग थलग सा, जहां पर जमीन तो खूब है, जहां पर जगह खूब है, स्पेस खूब है, लेकिन जहां पर लोग नहीं है, एकदम अलग है, आइसोलेटेड है ये। और उसके साथ ही साथ एक बात पे और उसको आश्चर्य हुआ। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि क्या ये वही अंटार्कटिका है जो कि कभी इंडिया का पार्ट था, जो कि कभी इंडिया और अंटार्कटिका क्या कभी दोनों साथ थे? इस बात पे भी आश्चर्य हुआ कि इंडिया एकदम अलग है आज के सिनेरियो में और अंटार्कटिका एकदम अलग है। क्या दोनों एक ही लैंड मास के पार्ट थे? इस बात पे वंडर फील करती है ऑथर। नाउ आप पाएंगे कि ये जो स्टोरी है ये 3 पार्ट में बटी हुई है। जो पहला पार्ट है वो है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दूसरा पार्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट, और तीसरा पार्ट है वॉक ऑन द ओशियन। सो हम लोग पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. Here, the history begins 650 million years ago. जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इस संबंध में, अंटार्कटिका के संबंध में, उस इतिहास की शुरुआत होती है 650 मिलियन ईयर्स पहले, जबकि एक बहुत बड़ा एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। और ये जो गोंडवाना है ये सेंटर था
लगभग उसी एरिया में जहां पे आज का अंटार्कटिका है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय जो चीजें थी वो आज से एकदम अलग थी। Humans had not arrived on the global scene till then. ये तब की बात है जबकि इंसान अस्तित्व में नहीं आए थे। This is the story of a time. This was a time when humans have not come in the scene. I mean, humans were not exist or were not in the existence. ग्लोबल सीन पे ह्यूमंस नहीं आए थे, तब की बात है। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। उस समय जो क्लाइमेट था वो आज की तरह नहीं था। अंटार्कटिका पे अभी तो एकदम ठंडा है अंटार्कटिका, लेकिन ये जब की बात है उस समय इतना ठंडा नहीं था अंटार्कटिका। वहां वो काफी गर्म था, hosting a huge variety of flora and fauna. And in those days, इस गोंडवाना लैंड पे काफी फ्लोरा एंड फौना का फैलाव था। ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना was available. For 500 million years, Gondwana thrived. 650 मिलियन ईयर्स एगो से बात शुरू हुई। 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना कंटिन्यू करता रहा, एग्जिस्ट करता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, shaping the globe much as we know it today. But before 500 million years was the time when dinosaurs were wiped out, when the age of mammals was getting the way. 500 साल पहले के आसपास की बात है। ये वही समय था जबकि डायनासोर्स लगभग खत्म हो रहे थे और मैमल्स का समय आ रहा था। द लैंड मास वाज, और उस समय कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स के कारण क्या हुआ, कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स के कारण जो गोंडवाना है वो क्या हुआ, सेपरेट हो गया, टूट गया, बिखर गया, कंट्रीज में बिखर गया। और ये बिखर के लगभग उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में वो आज है। इट केम इन द फॉर्म एज इट इज in the present time. To visit Antarctica now is to be a part of the history. आज अंटार्कटिका को विजिट करना हिस्ट्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम अंटार्कटिका पे जाकर के क्या करते, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। यहां जाकर के हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं हम कहां से आए हैं। हम जहां से आए हैं, हमारी रूट्स जहां पे हैं, हम उसको देख सकते हैं अंटार्कटिका पे। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, केवल पास्ट ही नहीं, फ्यूचर भी। अंटार्कटिका पर जाके हम अपने फ्यूचर को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारा फ्यूचर भी अंटार्कटिका में ही है। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, ओजोन एंड कार्बन
इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। अगर हमें कॉर्लेरियन फोल्ड्स या प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स या ओजोन और कार्बन इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के महत्व को समझना है, then we are supposed to go to अंटार्कटिका। हमें चाहिए कि हम अंटार्कटिका जाएं, because it is Antarctica where we may get everything, your each and every question will be answered on the Antarctica। हमारे जैव विकास की भी कहानी और जीवों के एक्सटिंक्शन की भी कहानी, ओजोन और कार्बन की भी कहानी, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स की कहानी या फिर कॉर्लेरियन फोल्ड्स की कहानी, इन सब का अगर एक्यूरेट आंसर आपको पाना है, यू शुड हेड टुवर्ड्स द अंटार्कटिका। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty and mind-boggling. Imagine, अगर आप सोचते हैं इस बात पे, if you think about the matter, what is going to happen in a million years, अगर आप इस बात पे सोच रहे हैं कि आगे आने वाले मिलियन ईयर्स में क्या होगा, really, it can get pretty and mind-boggling। ये काफी प्रेटी एंड माइंड बॉगलिंग हो सकता है। इमेजिन करिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। इमेजिन करिए, इंडिया नॉर्थ की तरफ पुश हो रहा है, जैम करता हुआ एशिया को, टू बकल इट्स क्रस्ट और हिमालयाज को फॉर्म करने के लिए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट कर रहा हो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए, और यही नहीं, एक ड्रेक पैसेज भी ओपन कर रहा हो, क्या करने के लिए? टू क्रिएट कोल्ड सरकमपोलर करंट, कोल्ड सरकमपोलर करंट को क्रिएट करने के लिए, जो कि अंटार्कटिका को फ्रीज रखेगा, डिसोलेट रखेगा, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और उसको वर्ल्ड के बॉटम पे रखेगा। ये सब आप अंटार्कटिका पे जाकर के ही पा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर कंक्लूडिंग अप टू हियर, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।